Hi everyone. So today we will start our next topic of chapter 6, that is staffing. In the previous video I told you about the staffing process. Now the next topic is elements of staffing. Actually there are three elements of staffing, that is recruitment, selection and training and development. Recruitment, I told you already in the previous videos that recruitment means to attract the number of people in our organization for the vacant job positions. Selection means after getting application with the source of recruitment, we just have to drop the number of persons in the vacant job position according to the qualification and skills. After selecting, we have to provide them training and development programs so that they can they can learn about the technical know-how, they can learn about the methods, the strategies, the criterias of our company. That's why every organization will provide training and development program to their employees. Why we are providing training and development program, I already told you that every organization have their different method, have their different criteria to do a particular work. So every organization provide training and development programs. So this is recruitment, selection and training. So we will study one by one what is recruitment. Actually recruitment are of two types, that is internal recruitment and external recruitment. Internal recruitment means the recruitment which takes place within the organization. जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कोई भी रिक्रूटमेंट करते हैं, उस टाइप के रिक्रूटमेंट को हम बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट. और इंटरनल रिक्रूटमेंट जो होता है उसमें हम दो तरीके से रिक्रूट कर सकते हैं लोगों को. या तो वी कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर जॉब पोजीशन, और वी कैन प्रमोट द वन पर्सन टू some higher authorities, to some higher designation, right? So what is internal recruitment? The internal recruitment means the recruitment which takes place within the organization itself. हमें बाहर से रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. जो हमारे पास द पर्सन हु आर अवेलेबल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी जस्ट हैव टू ट्रांसफ़र टू सम अदर जॉब पोजीशन, और वी कैन प्रमोट दैम टू सम हायर डेजिग्नेशन, राइट? सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिक्रूटमेंट. Now next one is external recruitment. External recruitment means the recruitment which takes place beyond the limits of your organization, right? Means हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लोगों का रिक्रूटमेंट ना कर बाहर से लोगों को अपने यहाँ रिक्रूट करते हैं, बाहर से अट्रैक्ट करते हैं. मीन्स वी नीड नंबर ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम आउटसाइड. And there are number of ways to do external recruitment, like direct recruitment, casual callers, recommendation from employees, employment exchange, private placement, advertisement, web publishing, campus placement. Means number of ways are there to do the external recruitment. बाहर से लोगों का recruitment करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे sources होती हैं. I will describe each and every point further, right? तो ये हमारा होता है recruitment, and recruitment are of two types, that is internal and external. Internal recruitment means the recruitment which takes place within the organization only, जो हमारी organization के अंदर ही take place करता है. जबकि जो हमारा external recruitment है वहाँ पर हम बाहर से लोगों को अपने यहाँ recruit कर लाते हैं, right? Next one is selection. सेकेंड एलिमेंट होता है सिलेक्शन. सिलेक्शन में ये हमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस पढ़ना है सिर्फ कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर कैंडिडेट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता क्या है. एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग मीन्स देर आर टू वेज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जो हम लोगों को काम जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते जो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं उस टाइप की ट्रेनिंग को हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग. बट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स व्हेन वी टेक द पर्सन फार अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस टू गिव दैम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. जब हम किसी भी पर्सन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए अपने पर्टिकुलर प्लेस से कहीं दूर ले जाकर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उस टाइप की ट्रेनिंग्स को हम बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. इज इट क्लियर? एंड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट ओवर हेयर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट the recruitment. Recruitment, I already told you that it means attracting candidates towards organization to apply for vacant job position. I told you that number of positions are remain vacant in the organization,
So we have to fill that vacant job position. And how can we fill that vacant job position? By with the process of recruitment, right? So there are two types of recruitment, that is internal recruitment and external recruitment. I already told you internal recruitment क्या होता है, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस करता है, लाइक ट्रांसफर एंड प्रमोशन. और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में हम ऑर्गेनाइजेशन से किसी बंदे का रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, बल्कि बाहर से लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करते हैं. देयर आर सर्टेन मेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट एज वेल. मेरिट्स होते हैं हमारे इंटरनल रिक्रूटमेंट के, भाई अगर इफ़ वी recruit the number of people within the organization, then there are number of merits as well as demerits. पहली बात, motivates employees. अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरनली रिक्रूट करते हैं, यानी कि वी आर प्रोवाइडिंग प्रमोशन टू सम पीपल, एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, और हम किसी का ट्रांसफ़र करते हैं, तो बाय विच दे कैन द एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड, राइट, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमारे ऊपर फुल फेथ है. सो वी जस्ट हैव टू गिव दैम फुल 100% रिजल्ट, आई शुड से. सेकेंड वन इज़ इनएक्सपेंसिव मैथड. इंटरनल रिक्रूटमेंट जो होता है उसमें पैसा खर्च नहीं होता, बिकॉज द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स आर देयर एंड यू जस्ट हैव टू प्रमोट दैम, यू जस्ट हैव टू ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर जॉब पोजीशन. यू आर नॉट सपोज टू गिव एडवर्टाइजमेंट एंड इट इज़ नॉट अ लेंदी प्रोसीजर. यू आर नॉट सपोज टू स्पेंड सो मच मनी ऑन इंटरनल रिक्रूटमेंट, राइट. बहुत इनएक्सपेंसिव मेथड होता है, बहुत पैसा कम, मतलब बिल्कुल ही खर्च नहीं होता आपका. नेक्स्ट वन इज़ जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़. इंटरनल रिक्रूटमेंट में इट गिव्स अ जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़, राइट. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू डू वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट you need job security in the organization, and if you will promote it to some higher designation, then definitely there is a satisfaction in your mind. आपके माइंड में तुरंत एक satisfaction आएगा that I am very satisfied with my job. At least मेरी जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो मेरे एम्प्लॉयर देख पा रहे हैं और उन्होंने मुझे प्रमोट किया, तो इट क्रिएट्स अ जॉब सेटिस्फेक्शन, इट enhance the morale of the employees, I should say. Next one is well know regarding rules and regulation of the organization. If you recruit the number of people within the organization, then they are very well aware about the rules and regulation of the organization. You are not supposed to tell them again and again कि भाई हमारे organization के ये rules हैं, ये regulations हैं. They are very well aware about all the rules and regulations. Next one is saves time. आपका जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, इट सेव्स योर टाइम, बिकॉज इफ़ यू डू द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट दैन इट नीड्स सो मच टाइम, इट कंज्यूम सो मच टाइम. बट इंटरनल रिक्रूटमेंट में कोई आपका समय खर्च नहीं होता है, क्योंकि आपको अपने इंटरनली लोगों का ट्रांसफ़र करना होता है या प्रमोशन करना होता है. उसके साथ साथ कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के, लाइक नो स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट. आपके पास जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, यू जस्ट हैव टू टेक द वर्क फ्रॉम दैट ओनली. आपको कोई फ्रेश टैलेंट नहीं मिल पाता है. नो एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन, अब बाहर से कोई कंपटीशन नहीं होता है. इफ़ एनी न्यू एम्प्लॉय विल कम इन योर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया एम्प्लॉय आता है, देन द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय विल want to give their work more effective than the new one. तो उनके अंदर एक कंपटीशन की फीलिंग जनरेट होती है. लेकिन यहाँ पर सारे इंटरनल लोग होते हैं, तो इसलिए कोई भी कंपटीशन की फीलिंग, कंपटीशन का सेंस उनके अंदर क्रिएट नहीं होता है. कॉन्फ्लिक्ट अमंग एम्प्लॉयज़, यहाँ पर लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी होते हैं, लाइक उसको क्यों प्रमोशन दिया, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं दिया, उनको इधर ट्रांसफ़र किया, आई नीड दैट जॉब पोजीशन, वाई, और आई एम द सीनियर वन. तो ये कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस इसमें होते हैं, क्योंकि हम इंटरनली लोगों का प्रमोशन और ट्रांसफ़र करते हैं. नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन. अब भाई कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर तो एम्प्लॉयज़ होते नहीं हैं, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट वहाँ पर सूटेबल नहीं होता है, राइट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. अभी हम लोगों ने इंटरनल रिक्रूटमेंट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. अगर आप बाहर से लोगों को अपने यहाँ रिक्रूट करते हैं तो क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ क्वालिफाइड पर्सनल. इफ़ यू रिक्रूट द पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड, तो आपके पास क्वालिफाइड पर्सनल आती है. आप जैसा चाहें वैसा आपके पास पर्सनल मीन्स वर्कर्स और एम्प्लॉयज़, आप जैसा चाहें वैसे एम्प्लॉयज़ आपके पास आते हैं.
सेकेंड वन इज़ वाइडर चॉइस, आपके पास यहाँ पर चॉइस बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होता है, चॉइस बहुत कम होती है और हमें उन्हीं लोगों में से प्रमोशन करना होता है और ट्रांसफ़र करना होता है। तो वेरी लिमिटेड चॉइस इज़ देयर इन इंटरनल रिक्रूटमेंट, बट इन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वी हैव नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, वी हैव पूल ऑफ एप्लीकेशंस एंड वी हैव अ वाइडर चॉइस। नेक्स्ट वन इज़ फ्रेश टैलेंट। आपका जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है, यहाँ पर हमारे पास टैलेंट जो होता है ये फ्रेश टैलेंट मिलता है हमको, क्योंकि वी आर वेरी अवेयर अबाउट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ एंड देयर टैलेंट, बट नाउ वी गेट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द न्यू एम्प्लॉयज़। मे बी दे आर वेल ट्रेन्ड in comparison to our existing employees, so we can get fresh talent with the help of external recruitment. Fourth one is competitive spirit. All the external people or the external employees have the competitive spirit in themselves. उनके अंदर competitive spirit होती है कि we just have to prove ourselves in front of our employer or in front of our colleagues, right? तो वो अच्छा काम करते हैं. Next is demerits. There are some demerits also. First one is dissatisfaction among existing members. कुछ dissentiment होता है existing members में that why we are not promoted to some higher position, why they have recruited the people from outside. राइट, कि क्या हम में वो क्वालिटीज़ नहीं है कि हम प्रमोट हो सकते हैं, उन्होंने ये बाहर से पर्सन को क्यों लाए हैं ये. तो देर कैन बी सम डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग मेंबर्स अगर आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं तो. सेकेंड वन इज़ लेंदी प्रोसीजर. एक बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है. इफ़ यू वांट द रैंडम रिक्रूटमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स इफ़ यू वांट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन वेरी frequently, then you can't go to external recruitment. You just have to do the internal recruitment only, because in external recruitment there is a lengthy procedure. Third one is expensive process. Obviously you have to spend so much money on advertisement, then number of applications will come, you will have to scrutinize each and every applications and also means lengthy procedure as well as so much expenses will be incurred on such type of external recruitment. So these are certain merits and demerits of external recruitments. Now the next topic is the sources of external recruitment. राइट, हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हैं, हम बाहर से लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ला सकते हैं, व्हाट आर द कॉमनली सोर्स वी कैन यूज़. तो फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में सबसे पहला होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. इसमें क्या होता है, वी जस्ट हैव टू पुट द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड और द फैक्ट्री गेट कि वी नीड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, एंड स्पेशली दीज टाइप ऑफ नोटिसेज आर पेस्टेड on the notice board just to get the unskilled labor like peons, है ना, फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉयज़ आई शुड से. तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ज़्यादातर अनस्किल्ड लेबर के लिए होता है. उसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी कंपनीज़ या फैक्ट्रीज़ होती हैं वो अपनी फैक्ट्री गेट पर कुछ नोटिस पेस्ट कर देती हैं और नंबर और टाइप लिख देती हैं दैट वी नीड दिस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, और टाइप लिख देती हैं उसमें किस टाइप के हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, एंड द पर्सन कैन कम. बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा इंटरव्यू लेने की ज़रूरत नहीं होती है. वी आर नॉट सपोज टू see the qualifications or degrees of such type of persons. We just have to look for the labors, and these labors are skilled or unskilled or semi skilled. Second one is casual collars. Casual collars में क्या होता है कि कंपनीज क्या करती हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि if I want a job in any organization or in any school, then first of all I have to drop a resume or my CV on in that particular school, right? If they already have selected the candidate, then what they will do, they just keep the record of all the members to whom they feel that they can deserve for this job position. अब भाई उनके यहाँ जॉब पोजीशन वैकेंट थी, वो फिल हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करेंगे, जितने भी उनके पास CVs और रिज्यूम्स आए हैं उन सब की एक कॉपी अपने पास रखते हैं, एक रिकॉर्ड रखते हैं, एंड वेन एवर दे नीड इन फ्यूचर then they can find out these records and call these candidates. So these are called casual callers. तो companies क्या करती हैं, companies keep the record of applications over a period of time and call them when vacancies arise. अब हर किसी को हमारे यहाँ 100 एप्लीकेशंस आई, लेकिन वी नीड ओनली 20 मेंबर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो बाकी 80 मेंबर्स का क्या हुआ, हमने वी kept the record. The organization will keep the record of those 80 members in the organization, and whenever in near future the company is in need of the vacancy or is in need of the candidates, they can call the candidates from that particular record. This is called casual callers.
नेक्स्ट वन इज़ एडवर्टीजमेंट. अब थर्ड वन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का एक सोर्स हो सकता है. यू कैन गिव द एडवर्टीजमेंट इन एनी सोर्स ऑफ मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आप किसी में भी एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, उससे लोग आपके यहाँ आ सकते हैं. फोर्थ वन इज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड प्लेसमेंट एजेंसीज को पैरेलली समझेंगे बिकॉज दे आर मोर कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट. थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस होता है. आई विल टेल यू. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसी का एक ही काम होता है. देर आर नंबर ऑफ जॉब सीकर्स इन आवर कंट्री. बहुत सारे जॉब सीकर्स होते हैं जिनको जॉब की ज़रूरत होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में या प्लेसमेंट एजेंसीज़ में अपने रिज्यूम्स प्लेस करते हैं और इन लोगों को उनके अकॉर्डिंग जब भी कोई जॉब पोजीशन मिलती है, दिखती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एज वेल एज प्लेसमेंट एजेंसीज़ का बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ टाई होता है, राइट. तो जब भी इनको कोई भी उनके अकॉर्डिंग जॉब्स मिलती हैं तो ये उनको जॉब्स दिलवाने में, उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाने में उनकी हेल्प करते हैं. दोनों का काम एक ही होता है. बट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज़ रन बाय द गवर्नमेंट वेयर एज प्लेसमेंट एजेंसी इज़ रन बाय द प्राइवेट बॉडीज़. तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कोई अपनी फ़ीस नहीं लेते हैं, जबकि प्लेसमेंट एजेंसीज़ क्योंकि प्राइवेट होती हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स चलाते हैं, तो इनकी जो फ़ीस ये लोग नौकरी लगवाने के बदले में क्या लेते हैं, फ़ीस चार्ज करते हैं फ्रॉम द जॉब सीकर्स. This is the only difference between both of them. They are run by the government and they will not charge any fees from the candidate. But the placement agency is run by the private bodies और placement agencies को हम consultancies भी बोलते हैं, right? For example, if a person does मतलब MBA, तो he is not finding the job according to the qualification and skills he have. Then what he can do? He can go to the employment exchange or placement agencies. Right, because they both have the contact with multinational companies or different private sectors, so they can help them to provide the jobs, right. Next one is campus recruitment. ये बहुत फेमस है आजकल, आपने देखा होगा. there are number of companies which will come to different colleges or universities in the final year, कि जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं उनको वो क्या करते हैं, वो अपने साथ ले जाते हैं और मतलब व्हाट दे वांट फ्रेश टैलेंट. तो कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं दे हैव लेसन विद यूनिवर्सिटीज़, उनके रिलेशंस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ से और कॉलेजेस से, और वो रिक्रूट करते हैं वहीं से बच्चों को, राइट. नेक्स्ट वन इज़ लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स आपने सुना होगा, अगर मैं हिंदी में समझाना चाहूँ इसको तो ठेकेदार हम बोलते हैं इनको. labor contractors, like number of times you have seen the buildings and bridges and dams, right. तो वो बनते हैं तो इतनी सारी लेबर कहाँ से आएगी, तो हम क्या करते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढते हैं और उसको सारा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर विल प्रोवाइड अस द लेबर. और इसकी बड़ी बड़ी कंपनीज भी होती हैं, राइट, जो स्किल्ड और कैजुअल लेबर्स को प्रोवाइड करती हैं. तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ठेकेदार जो होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स वो होते हैं, दे प्रोवाइड लेबर्स टू द बिल्डर्स एंड डिफरेंट गवर्नमेंट कंपनीज ऑल्सो, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द लेबर इन द लार्ज क्वान्टिटी, एंड वी कैन ईजीली गेट द लेबर बाय द लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. नेक्स्ट वन इज़ वेब पब्लिशिंग. आपने आजकल देखा होगा काफ़ी सारी वेबसाइट्स चल रही हैं, naukri.com, monster.com, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं फॉर द जॉब सीकर्स. You can place your resume over there, and whenever they find the job vacancies according to you, they can send the message or emails to you, right. So this is called web publishing. So these are some of the sources which is known as the most common sources of external recruitment.